Good morning. Uh, Let us start with the polynomial. We have already done this chapter in ninth standard. So let us recall the concepts of polynomial and see what else in addition we are going to learn in 10th standard in this chapter polynomial. So here we have a few synopsis of polynomial, recalling the concepts, recalling the definition. So any algebraic expression, okay, in the form p of x equals to a naught plus a1 x plus a2 to the power x to the power 2 plus a3 x to the power 3, yes or no, plus dotted 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 if there are n terms, so plus dotted 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 plus an x to the power n. Am I clear with that? So such an expression, such an algebraic expression is called as polynomials. Okay, we just have to take care of one thing here, that the variable, the variable, that is the variable exponent, yes or no, it has to be non-negative. The variable exponent has to be non-negative. Then we can say that this particular example is a polynomial in variable x of degree n. So here we have an example, 2x cube plus 4x square minus 5x plus 7 is a polynomial in one variable, that is x. Alright. Acha, this is already, the example is already the polynomial in a standard form. Am I right? We have done in 9th standard polynomials, and this has written according to the degree. The highest, then the lower, then that, then the lower, then the lower, and then the constant term. So this is already present in the standard form of polynomial. So whenever we are solving sum, we'll first take care of it, that our polynomial is there in the standard form. Am I right? Okay. There in 9th, we have again done, if a polynomial is in this way, phi by x, yes or no, then this cannot be a polynomial. If phi by x is an example, whether it is polynomial or not, so this is not a polynomial, because further it can be written as phi x to the power minus 1. So here the exponent cannot be, now we are saying that it is non-negative integral exponent. Am I right with that? So the power cannot be negative. अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं है तो वो क्या होगा? तो वो पोलिनोमियल होगा. आई बात समझ में? वेरिएबल का पावर 0 है चलेगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा. x टू द पावर 0 है चलेगा, बराबर, इट इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. बट x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कैन नॉट बी नेगेटिव. एम आई राइट विद दैट? यस, इफ इट इज नॉट नेगेटिव देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोलिनोमियल. ठीक है, सो बहुत सारा एग्जाम्पल क्या था. लेट अस गो फर्दर एंड सी हाउ डू वी फाइंड द डिग्री ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल. बराबर, सो to find the degree of a given polynomial, we first arrange our polynomial, barabar, in the standard form. Yes or no? We arrange in the standard form, that is what we call in an order, first the highest power, then power lower than that, then the power lower than that. So we arrange them in the standard form first, and then we see the highest power of the variable. The highest power of the variable is called the degree of the polynomial. So here we have the highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. So again we have two examples here. P of x equals to phi x plus 3. So phi x plus 3 is our polynomial. Variable is x and power of x is here 1. So what is the degree of this? Degree is 1. Am I right? Can you guess the degree of the second one? Achha, second one example is the example of polynomial in variable y. Yes, it is example of polynomial in variable y. And what can you say about the degree of this polynomial? So variable y, तो y का highest power कहाँ पर है? y cube. तो इसका degree क्या हो गया? 3. Am I right with that? Now let us go and see another example of constant polynomial. When do we say the polynomial is constant? Okay, so we can say that the given polynomial is constant if the degree
okay, of the polynomial, if the degree of the polynomial is 0, then we say that our given polynomial is a constant polynomial. Okay, if the degree of the polynomial is 0, then we say that this polynomial is a constant polynomial. So you can see examples here. 4 बराबर ऐसा होगा ये 4x to the power 0 बराबर, that is 4, because anything raised to 0 is 1. तो x raised to 0 1 हो गया, तो ये 4 into 1 क्या हो गया 4 हो जाएगा. आई बात समझ में? तो अगर वेरिएबल का पावर 0 है तो हम क्या बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा. क्या होगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल. या कांस्टेंट पोलिनोमियल दिया है तो वहाँ से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल का पावर 0 होगा. ओके, now let us go and see zero polynomial. Okay, when do we say it's a zero polynomial? So again, the concept of constant polynomial and zero polynomial, they coincide. So also the constant polynomial, okay, so the constant polynomial is called zero polynomial, and the degree of this zero polynomial is not defined. Am I right with that? So the constant polynomial is called zero polynomial, बराबर, and the degree of this zero polynomial is not defined. Okay. So next we go to linear polynomial. So a linear polynomial is a polynomial of degree 1. So if the degree of our polynomial is 1, the highest degree of our polynomial is 1, then we say that it's nothing but a linear polynomial. So example of linear polynomial is 3x plus 6. तो वेरिएबल x है और वेरिएबल x का जो पावर है वो क्या है, तो 1 है, तो बराबर है, तो ये क्या होगा, एक लीनियर पोलिनोमियल होगा. फिर √3x माइनस 3. ओके, सो हमको सिर्फ वेरिएबल का पावर, मतलब रूट में मैं नंबर इसलिए दिया हूँ सिर्फ ताकि आपको कहीं पोलिनोमियल पहचानने के लिए आए तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि अरे रूट वाला नंबर है कहीं ये पोलिनोमियल नहीं होगा, बराबर. सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है हमको. वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव है, बराबर, तो क्या होगा ये, तो ये पोलिनोमियल होगा. अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नहीं है तब वो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर नेगेटिव है तो. एम राइट? सो √3x माइनस 3, वेरिएबल x उसका पावर 1, तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल है. नेक्स्ट 7/5y माइनस 10, बराबर, तो नंबर एक फ्रैक्शन में है. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. कांस्टेंट इज़ अ रियल नंबर, बराबर, कांस्टेंट इज़ अ रियल नंबर, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद डैट. और कुछ भी मतलब ज़ीरो को छोड़ के, लीनियर पोलिनोमियल में ज़ीरो को छोड़ के द कांस्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो, बराबर. जो वेरिएबल के आगे नंबर है, कोएफिशिएंट बोल सकते हैं उसको, बराबर, नॉट द कांस्टेंट बट कोएफिशिएंट. द कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ज़ीरो. जैसे यहाँ पर y के आगे 7/5, तो 7/5 क्या है, कोएफिशिएंट है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बराबर. x के आगे √3 है, तो √3 क्या है, कोएफिशिएंट है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता. सही है. कांस्टेंट कौन, इधर -3 है, वो ज़ीरो हो सकता है. इधर कांस्टेंट कौन है, -10 है, वो ज़ीरो हो सकता है. नेक्स्ट वी गो टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का पावर जो होगा, वो जो डिग्री जो होगा वो 2 होगा. तो इफ़ द पोलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जैसे एग्जांपल ले लो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ मैंने बता दिया, ax² प्लस bx प्लस c. योर b कैन बी 0, c कैन बी 0, बट a कैन नॉट बी 0, बराबर. x² के आगे जो हमारा कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में. अगर वो 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, बराबर है कि नहीं. एग्जाम्पल देख लो, 3x² प्लस 4x प्लस 1. तो यहाँ पर पावर जो है, वेरिएबल कौन है, x है, और x का पावर क्या है, इस पावर क्या है, 2, इसके लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x है, अगेन x का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यस. नाउ लेट अस गो एंड सी अ क्यूबिक पोलिनोमियल. अब हम लोग आगे देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को. तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या होगा, 3 होगा. तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऑल द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल. ऑल द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल. आई बात समझ में? यहाँ पर a, b, c और d ये सब रियल कांस्टेंट हैं. और अगेन a कैन नॉट बी 0, बराबर है कि नहीं, a कैन नॉट बी 0. इसका रिप्रेजेंटेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d.
तो वही मैं कह रहा था ए ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा. ठीक है, तो बी केयरफुल विद दैट. ए कैन नॉट बी जीरो, अदर बी सी डी ये सब जीरो हो सकते हैं क्योंकि वो रियल कांस्टेंट है. एग्जाम्पल है 2x³ माइनस 4x² प्लस 8x माइनस 3, और दूसरा एग्जाम्पल है 4y³ प्लस 3y² प्लस 7y माइनस 14. Correct? So just check with that whether it is a cubic polynomial or not. Yes, it is a cubic polynomial. Both are cubic polynomial because the degree of in both the examples is 3. Next we have zero polynomial. Let us go and see what is zero of polynomial. Okay, so this we have already done. 9th standard में हमने किया था ना, zero of a polynomial, how to find zero of a polynomial. In fact पूरा का पूरा chapter इसके ऊपर था, zero of a polynomial के ऊपर. So a real number k, एक अगर रियल नंबर लूँ मैं k, तो इट इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इक्वल्स टू जीरो. तो पोलिनोमियल अगर x में है तो x की जगह अगर मैं k का वैल्यू डाल दूँ और उस k की वजह से वो पोलिनोमियल मेरा जीरो हो जाए पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, k इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. यस और नो, दैट वी हैव डन ऑलरेडी डन. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. फाइंड वेदर -1 and 1 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x minus 1. तो योर p of x, our p of x is equal to x minus 1. We need to verify whether x equals to -1, okay, और x equals to 1. इनमें से दोनों में से कौन सा जीरो है हमारे गिवन पोलिनोमियल का. तो पहला वाला केस लेते, फॉर x equals to 1, या फिर x equals to, पहला वाला केस -1 तो -1 ले लेते, फॉर x equals to -1. therefore p of -1 equals to -1 कितना आ गया बेटा, ये -2 आ गया. तो p of -1 -2 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है. तो जीरो नहीं आ रहा है तो ये हमारा जीरो नहीं होगा. हमारा पोलिनोमियल कौन है, x -1. px equals to x -1 का जीरो, -1 इज नॉट अ जीरो. नाउ लेट अस चेक वेदर 1. तो फॉर x equals to 1, तो p of x इज इक्वल टू x -1, यही है पोलिनोमियल है. तो p of 1 equals to 1 minus 1 and that is 0. So yes, what can we say, that 1 is 0 of the polynomial. बराबर, 1 क्या है, 0 है पोलिनोमियल का. तो वही तो k अगर ले रहे हैं हम लोग हमारे पोलिनोमियल में, तो k को वैल्यू को अगर हमने x की जगह डाला और उसमें हमारा पोलिनोमियल अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे k is the 0 of the polynomial. Yes or no? This we have already done. Find the 0 of the polynomial. एक पोलिनोमियल दिया है हमको, p of x equals to 3x plus 1, और क्या बोल रहा है, इसका जीरो फाइंड करो. बराबर, हमको नंबर नहीं दिया है, हमको k का वैल्यू नहीं दिया है. वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच कैन मेक इट जीरो. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम बोलते थे देयरफॉर p of 0 equals to 3x plus 1, और p of 0 क्या हो गया, जीरो. p of 0 क्या हो जाएगा, जीरो. 0 equals to 3x plus 1, तो उस हिसाब सॉल्व किया तो 3x equals to -1, तो x equals to -1/3. तो क्या कह सकते हैं, x equals to -1/3. तो -1/3 is the zero of this polynomial. बराबर. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, थोड़ा सा और इसका कंसेप्ट को हम जो 10th में काम आने वाला है उस चीज़ को समझते हैं हम. तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है. अच्छा, डिग्री, व्हाट कैन यू से अबाउट डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो 1 होता है. व्हाट कैन यू से डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो 2 होता है. बराबर, ये हमारा एक्सरसाइज हो गया, सॉल्विंग का एक एक्टिविटी हो गया. व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3. अच्छा, जनरल फॉर्म क्या था इसका, ax प्लस बी वेर a इज नॉट इक्वल टू 0. याद आ रहा है लीनियर का. क्वाड्रेटिक का क्या था, ax² प्लस bx प्लस c वेर a अगेन के नॉट बी 0. ये सुनो. और क्यूबिक का क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेर a के नॉट बी 0. तो दीज वर द जनरल फॉर्म. बराबर है कि नहीं. अभी इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा होगा. तो कभी भी लीनियर का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. डू रिमेंबर दैट. लीनियर का क्या होगा, अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, क्वाड्रेटिक का
पैराबोला होगा, क्या होगा, पैराबोला, पैराबोला ऐसा या ऐसे होते हैं, बराबर, ध्यान देना। और क्यूबिक का, बराबर ना, a cubic polynomial will be a curve, it will be a curve, ये कर्व होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज, तो इसके पास एक हो सकता है, कितने जीरो होंगे, दो होंगे एट द मोस्ट, और कितने एट द मोस्ट, 3 जीरो, बराबर है। सो ये था कुछ हमारे जीरोस के बारे में, जो कंसेप्ट है उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो इसमें एक चीज़ याद रखना हमको ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री, बराबर ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या है, किसी भी पोलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, वो उसके डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल डिपेंड अपॉन द डिग्री। सो योर वट एवर आई हैव टेकन एज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, बराबर। ये पोलिनोमियल के पास जीरो नहीं भी हो सकता है, बराबर है। there can be a condition where the polynomial will not have any zero also, even that can be a condition. So we are taking कि ये जो condition में number of zeros, so this we have taken as the maximum number of zeros the polynomial can have. तो linear polynomial डिग्री 1 है तो उसके पास एक ही जीरो होगा, maximum number of zero is 1. quadratic polynomial उसका डिग्री 2 है तो उसके पास maximum number of zero क्या हो सकते हैं, 2. cubic polynomial डिग्री 3 है तो उसके पास maximum number of zero क्या रहेंगे, तो 3 रहेंगे। अब आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो 10th का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगा, बराबर। सो अंडरस्टैंड दिस कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस इज नोन एज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जब एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, बराबर है, तो वहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस, बराबर, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करता है, उसका एक्स जो कोऑर्डिनेट है वही हमारे जो पोलिनोमियल है उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया? तो नंबर ऑफ जीरोज, तो हम लोग ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि गिवन पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, हाउ कैन वी कम टू नो फ्रॉम द ग्राफ, गिवन ग्राफ। तो ये देखना होता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर मीट करता है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज मीटिंग एक्स एक्सिस। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। समझ में आया? एक जगह जहाँ मिलेगा, 2 जगह मिला तो 2 जीरो, 3 जगह मिला तो 3 जीरो, 4 जगह मिला तो 4 जीरो। आई बात समझ में? तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर, ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो based on these topics, let us go and check our first exercise and try to find out the number of zeros each graph represents. Okay, so here we go.